करने के साथ ही पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी सभा भवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस पर जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। It is my honor to extend a warm welcome to the Honorable Shri Gulab Chand Kataria, Governor of Punjab and Administrator of the Union Territory of Chandigarh. It is a matter of great pride for us that he has graciously accepted our invitation to attend this event, for which we are sincerely grateful. Our chief guest today, the Honorable Shri Gulab Chand Kataria, hails from Udaipur, Rajasthan. Following his academic pursuits, he began his career as a teacher. His political journey commenced in 1977 when he was elected for the first time as an MLA from the Udaipur constituency. Since then, he has steadily risen through the ranks of public service. In addition to serving as a Member of Parliament from Udaipur, Honorable Shri Kataria has been elected as an MLA on 8 occasions. In recognition of his dedication to education, he was conferred with the Excellent Teacher Award by the Jeevanmal Natha Memorial Trust, New Delhi on 5th September 2006. On 31st July of the previous year, Honorable Shri Kataria assumed office as the Governor of Punjab and the Administrator of Chandigarh, becoming the 37th individual to serve in this esteemed capacity. Demonstrating his commitment to social causes, Honorable Shri Kataria recently undertook a 6-day Padayatra across various cities in Punjab to raise awareness and combat the growing menace of drug abuse. A similar effort was led by him last year in the form of a 2-day march. Furthermore, on 3rd May, he spearheaded a Padayatra in Chandigarh aimed at establishing it as India's first drug-free city, an effort that witnessed participation from thousands of citizens. This couplet rings true on so many levels for our Honorable Chief. Honorable Sir, Honorable Sir, रोशनी को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप में मार्गदर्शी है. You are the guiding light for so many people, sir. We deeply commend and salute the Honorable Shri Kataria's unwavering commitment to public welfare. सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है. हैरान हूँ, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के दिन है? ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के दिन है? Yes,
The poet is absolutely right. Mother's Day is not just about one day. It is not merely a day to celebrate motherhood. It's not just a gesture. Honoring mothers is a responsibility. While the world applauds those who reach the sky, we must never forget those who taught them how to fly. By honoring these women, we make a powerful declaration today. Motherhood is not invisible. So let us carry the spirit forward beyond this stage. Let us appreciate, acknowledge, and honor the mothers in our lives, not just today, but every single मानव मंगल स्मार्ट स्कूल और डॉक्टर जीसी मिश्रा मेमोरियल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। इस समारोह में आज ऐसी मां को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने संघर्ष की मिसाल पेश की और वे दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनी। वरिष्ठ पत्रकार श्री मयंक मिश्रा ने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर जीसी मिश्रा की याद में इस ट्रस्ट की स्थापना की है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र थे। इस साल मां सम्मान समारोह मदर्स डे के कुछ दिनों के बाद किया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहूंगी कि ट्रस्ट और स्कूल पिछले करीब 12 सालों से मिलकर कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, एक संक्षिप्त झलक स्कूल और ट्रस्ट की सामाजिक गतिविधियों की, जो कि एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से की जाएगी। महामहिम श्री गुलाबचंद कटारिया जी को कि वे मंच पर आएं और माओ का सम्मान करें। संजय सरदाना जी, अंजलि सरदाना जी, समर्थ सरदाना जी और मयंक मिश्रा जी से आग्रह है कि वे अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। एक बार तालियां हो जाए। बहुत धन्यवाद। आज के इस मां सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुमन को। चंडीगढ़ निवासी सुमन के जीवन का संघर्ष उस दिन शुरू हो गया जब उनकी 3 साल की बेटी कैफी के ऊपर होली के दिन उनके परिवार से रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने एसिड फेंक दिया। इस दुर्घटना में कैफी का चेहरा खराब हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। 3 साल तक एम्स दिल्ली में इलाज चला। कैफी पढ़ना चाहती थी। जब वे 8 वर्ष की हुई तो उसका दाखिला हिसार में पहली क्लास में करवा दिया गया। कैफी को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से परिवार चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया और कैफी का एडमिशन सेक्टर 26 के इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में करवा दिया गया। सुमन कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बेटी के आईएएस अफसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने उसकी हर तरह से सहायता की। आर्थिक तंगी होने के कारण रोज नई चुनौतियों का सामना किया। कैफी की मेहनत और सुमन के संघर्ष का नतीजा ये रहा कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में उसने 95.2% लेकर टॉप किया। 10वीं के बाद उसने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में भी 95.6% अंक लेकर स्कूल में टॉप किया। सुमन के पति चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हरियाणा सरकार एक विभाग में चपरासी हैं। एक बार जोरदार तालियां सुमन के लिए। नवीन जसूजा। पंजाब के फाजिल्का की निवासी नवीन जसूजा पेशे से वकील हैं। जब उनके बेटे विदुर का दाखिला मैसूर में एमबीबीएस में हुआ तो वे बहुत खुश हुई, लेकिन साल 2013 में दूसरे वर्ष का बैच ज्वाइन करने से पहले पंजाब के परिवार के साथ घर जाते समय बेटा विदुर सड़क हादसे का शिकार हो गया। हालांकि हादसे में अन्य लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन विदुर के स्पाइनल कॉर्ड में गहरी चोट लग गई। इस वजह से वे 6 महीने अपने बैच से पिछड़ गया। ऐसी स्थिति में जब विदुर को जिंदगी मुश्किल लगने लगी तो उसका बाहर आना जाना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद हो गया, तो मां नवीन ने उसे सहारा दिया। इस हादसे के बाद विदुर की लिखने की गति बहुत कम हो गई थी। ऐसे में नवीन ने अपना करियर छोड़ दिया, पर विदुर की एमबीबीएस पूरा होने तक भी उसके साथ रही। वे उसके लिए पेपर लिखती थी। नवीन के इस हौसले के कारण ही विदुर एमबीबीएस पूरी कर सके और आज वे पीजीआई चंडीगढ़ में बतौर साइकेट्रिस्ट लोगों का इलाज कर रहे हैं।
रितिका सोपती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंचकुला निवासी रितिका सोपती के जीवन का संघर्ष उनकी बेटी रिताशा के जन्म के बाद ही शुरू हो गया था। बचपन से ही वे सेरेब्रल पॉल्सी नामक बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी की वजह से रिताशा ना तो ठीक से चल पाती है और ना ही ठीक से बोल पाती है। रितिका ने बेटी को हौसला दिया और उसके साथ संघर्ष किया, जिससे वे आगे बढ़ती गई। हरियाणा सरकार में साइंस की शिक्षिका रितिका ने कभी भी बेटी पर उसकी बीमारी को हावी नहीं होने दिया, जिससे वे बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही। लोगों की बातों की परवाह किए बिना रिताशा ने अपनी पढ़ाई में पूरा दिमाग लगाया। परीक्षा में बेटी रिताशा ने अपने दूसरे प्रयास में 920वां रैंक हासिल किया। शिवानी जग्गी। शिशु के लिए माँ का दूध अमृत होता है, इस बात को डॉक्टर तक मानती हैं, लेकिन फिर भी कई शिशुओं को माँ का दूध नहीं मिल पाता है। जीरकपुर निवासी शिवानी जग्गी ने करीब 1.5 साल तक चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में स्थापित मिल्क बैंक में अपना दूध डोनेट करके न जाने कितने ऐसे शिशुओं की जान बचाई है, जिन्हें पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं होता। अधिक उत्पादन होने पर कई महिलाएं अपने अतिरिक्त दूध को पौधों में फेंक देती हैं, लेकिन शिवानी ने ऐसा नहीं किया। डिलीवरी के बाद जब उन्हें एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन होने लगा तो उन्होंने ठान लिया कि वे दूध फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद बच्चे तक इसको पहुंचाएंगी। अपनी इच्छा से उन्होंने मिल्क बैंक में दूध डोनेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानती हैं कि एक शिशु के लिए इसकी अहमियत क्या है। जीरकपुर में प्राइवेट नौकरी कर रही शिवानी मिल्क बैंक की जानकारी देने के लिए अब महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। शिवानी के अनुसार सभी स्वस्थ माएं जिन्हें उनके बच्चे की आवश्यकता से ज्यादा दूध उत्पादन हो रहा है, वे मिल्क बैंक को दूधदान दे सकते हैं। पुष्पा देवी। पटियाला निवासी पुष्पा देवी का संघर्ष बचपन में ही शुरू हो गया था, जब मात्र 10 साल की उम्र में उनकी मां गुजर गई। बचपन में ही अपने पिता का सहारा बनने और छोटे भाई बहनों को पालन पोषण करने के लिए अपनी पढ़ाई को त्याग दिया। इसके बाद उन्हें अपने बच्चों की परवरिश में भी काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने गाय का दूध बेचकर पैसे जोड़े और कई तरह की चुनौतियों का सामना किया। अपने बच्चों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए पुष्पा देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया ताकि वो जो बचपन खुद नहीं जी सकी, उनके बच्चे जी सके। वे खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा शिक्षा के महत्व को समझा और अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। अपने बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके संघर्ष का परिणाम ये रहा कि उनकी बेटी पीएचडी करने के बाद आज हरियाणा के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है, जबकि उनका एक बेटा विदेशी न्यूज एजेंसी में सीनियर इकोनॉमिक्स कॉरेस्पॉन्डेंट है। जसविंदर कौर जी। हरियाणा के मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली जसविंदर कौर के जीवन का संघर्ष उनके बेटे अंकुर जीत के जन्म के कुछ सालों बाद शुरू हो गया था। जब उन्होंने बेटे का दाखिला स्कूल में करवाया तो उन्हें पता चला कि उसे कम दिखाई देता है। इसके बाद से बेटे की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ समय बाद जब बेटे को एकदम से दिखना बंद हो गया तो जसविंदर कौर ने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेगी। जसविंदर कौर हरियाणा सरकार में कार्यरत थी। जब उन्हें अपने बेटे की समस्या का पता चला तो जो भी वे स्कूल से पढ़कर आता था, रात को उसको पढ़कर सुनाती थी। इस तरह से वे सुनकर पढ़ाई करने लगा। अंकुर जीत की 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई थी। जब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे खेलते और मस्ती करते तब जसविंदर कौर ने सारी किताबें पहले ही वो उसको पढ़ा देती थी। एक बार जोरदार तालियां जसविंदर कौर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एक ऐसी माँ को जिसके बेटे ने देश के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे वीर बेटे को जन्म देने वाली माँ रीना शर्मा जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। 18वीं पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन रोहित कौशल ने 11 नवंबर 1995 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के मुठभेड़ में अपने बात को लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वर्ष 1968 में अम्बाला के कैप्टन रोहित कौशल रीना शर्मा और ऐसे कौशल के इकलौते बेटे थे। कैप्टन रोहित ने हमेशा अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और मातृभूमि की अखंडता और एकता के लिए उग्रवाद और आतंकवाद में से लड़ने के लिए सबसे आगे रहे। उन्होंने साहसपूर्वक लड़ते हुए अपने सीने और गर्दन में बहुत सारी गोलियां खाई। जब उनका बहुत खून बह रहा था तब भी उन्होंने गोलीबारी जारी रखी और दम तोड़ने से पहले 2 आतंकवादियों को घातक रूप से घायल कर दिया।
सरबजीत कौर। मोहाली के गांव की निवासी सरबजीत कौर के जीवन का संघर्ष बेटी के पैदा होने के साथ ही शुरू हो गया था। बेटी घरलीन पैदाइशी दृष्टिहीन है, लेकिन सरबजीत उसे कभी हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। यही वजह थी कि वे उसकी आंखें बन गईं। बेटी को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे दुनिया नहीं देख सकती है। जब हरलीन 6 साल की हुई तो उसका दाखिला चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड में करवा दिया गया। बेटी स्कूल में खुद को एडजस्ट कर ली, इसलिए वे 1 महीने तक उसके साथ हॉस्टल में रही। गांव में जब लड़कियों की अक्सर 12वीं के बाद शादी कर दी जाती है, तब उन्होंने तय किया कि वे बेटी को पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करेंगी। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाली सरबजीत कौर के संघर्ष का परिणाम ये रहा कि बीए में 83% अंक हासिल करके दृष्टिहीन हरलीन सामान्य बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। एक बार जोरदार ताली। चंडीगढ़ निवासी भारती ने बचपन में ही अपनी बेटी नंदिनी के अंदर काबिलियत देख ली थी। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उनके पिता कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रुप डी के पद पर कार्यरत हैं। पति की आय सीमित होने के कारण भारती ने कुछ छोटा मोटा काम किया ताकि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। उन्होंने बेटी को हमेशा प्रोत्साहित किया और उसे कभी भी आर्थिक तंगी का एहसास नहीं होने दिया। बेटी ने 10 साल की उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और कई तरह के दिक्कतों का सामना करते हुए भारती ने उसे आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार ताली भारती के लिए। और आज का सबसे खास अवार्ड, हर साल मदर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। इस साल का मदर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है माधुरी सिंह को। ये कहानी है उस माँ की जिसका अपना कोई नहीं था। राजपुरा स्थित SOS चिल्ड्रन वेलफेयर इंडिया में माधुरी सिंह ने करीब 40 बेसहारा बच्चों को पौधों की तरह सींचकर छायादार वृक्ष बनाया। इन बेसहारा बच्चों को बनने के 4 महीनों तक अपनी संस्कृति क्यों दिखा कि साथ बनी बाकी नहीं होता माधुरी ने इन बच्चों का ख्याल ऐसे रखा कि उन्हें इन शास्त्रों और संस्कारों की कोई कमी न रह जाए। इन बच्चों को काबिल बनाने में उन्होंने किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। एक बार जोरदार ताली। मैं चाहूंगी कि यहाँ सम्मानित हुई सभी माओं के लिए एक बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाए। इससे पहले कि मैं निवेदन करूं कि संजय सर दाना जी और मयंक मिश्रा जी की आज के समारोह में आई मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें, मैं मयंक मिश्रा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपनी नई किताब बॉनी गुड़िया हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी को भेंट करें। मैं बताना चाहूंगी कि मयंक मिश्रा जी ने अपनी ये किताब भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को भी भेंट की है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री गुलाबचंद कटारिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री गुलाबचंद कटारिया जी से कि वे हमें संबोधित करें। महान सम्मान समारोह के अवसर पर सबसे पहले श्री मयंक मिश्रा जी और आपके सारे परिवार को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कि आपने वास्तव में इस ट्रस्ट के माध्यम से माँ का सम्मान करने का एक कार्यक्रम लगभग 2011 से शुरू किया और अब 12वीं बार आप इस सम्मान समारोह के साथ। सबसे पहले तो मैं आपके डॉक्टर KC मिश्रा मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और मानव मंगल स्मार्ट स्कूल के सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने इसका नाम रखा है माँ का सम्मान, माँ का सम्मान अनादिकाल से होता रहा, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और मैं सोचता हूँ कि आपने जिस भावना से
अपने इस ट्रस्ट को इसके साथ जोड़ा है। आपने आने वाली पीढ़ी को भी माँ के महत्व को भी और माँ की समर्पण को भी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम चुना है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर श्री मयंक जी मिश्रा, श्री संजय सरदाना जी, संकल्प सरदाना जी, श्रीमती अंजलि सरदाना जी और आप सभी माताएं जिनको आज हमने, क्योंकि मैं महामहिम हूँ इसलिए अधिकार मेरे को ही मिला आपका सम्मान करने का, और ये सब लोग भी आपका बहुत बहुत दिल से सम्मान करते हैं। आपकी उपलब्धि सारे लोग माँ का सम्मान दिल से करते। माँ ही एक ऐसी चीज है जो कभी अपने बच्चों के बारे में अंतर नहीं करती है। कलेक्टर भी उसका बच्चा हो सकता है और टीचर भी उसका बच्चा हो सकता है, और उसका प्यार सबको बराबर करता है। ऐसा शायद कोई निर्णय बहुत कठिनाई से कर सकता है, लेकिन माँ का दिल ही कुछ ऐसा होता है कि वो अपने सब बच्चों को, यहाँ तक कि विकलांग बच्चा होता है तो उसको भी जो प्यार सबसे ज़्यादा अगर किसी को देती है माँ, तो उस विकलांग बच्चे को देती है जिसको उसके प्यार की ज़्यादा आवश्यकता है। और इसलिए माँ का सम्मान हमेशा रहता है। मैं इस ट्रस्ट को इस बात के लिए भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मानव मंगल स्मार्ट स्कूल ये नाम भी कोई बहुत सोच के बाद बनाया। मैं सोचता हूँ कि इस विद्या के मंदिर में मनुष्य बनाए जाते हैं और मनुष्य ही मानव बनता है। तो मानव मंगल कैसे हो उसका कोई आधार स्तंभ है तो ये विद्या का मंदिर है। इसको जिस समर्पित भाव से हम काम करते हैं उतना ही हम आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ दे जाते हैं। दिखने में वो नहीं दिखता है, लेकिन उसके परिणाम जब आते हैं तो बहुत ही सबको आनंद का अनुभव होता है कि एक तो माँ है जो संस्कार देती है और दूसरा विद्यालय है जो व्यक्ति को बनाता है। आप और उन सब लोग भी अपने परिवार में पिताजी को इतना याद नहीं और माँ को हमेशा दिल में रहती है, क्योंकि वो जिस तरह से हमारा पालन पोषण करती है, जिन कठिनाइयों में पालन पोषण करती है। मैं सोचता हूँ कि आप बीमार होते हैं तो वो जरूरी है। आपको कहीं भी विदेश में भी रहते हैं तो आपको कोई तकलीफ होती है तो उसका एहसास अपने आप बेतार के तार के द्वारा हो जाता है और उसका मन नहीं लगता है कि आज कोई गड़बड़ हो रही है। ऐसा जिसका दिल जुड़ा रहता है उस माँ का सम्मान हम सब लोग बहुत मन से करते हैं। इस ट्रस्ट ने इस अभियान को 2011 से शुरू किया और मैंने जैसा बताया है इसकी स्थापना करने में ऋषि मिश्रा मेमोरियल एजुकेशन प्रसिद्ध लेखक मयंक मिश्रा जी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर गिरीश जी मिश्रा की स्मृति में इसको प्रारंभ किया है। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि परिवार के मुखिया का क्या योगदान होता है आपको और मुझे बनाने में, और माँ किस तरह से पाल करके हम सबको इस लायक बनाती है। अपन यहाँ जितने बैठे हैं, चाहे कुर्सी पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, इन सब के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो माँ का है। मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए कभी नहीं उठाया, लेकिन माँ मेरी जल्दी उठ करके मुझे भी उठाती थी कि भाया तेरी परीक्षा है, पढ़ना है ना। पिताजी ने कभी भी पढ़ने के लिए नहीं उठाया, पर माँ ने हमेशा पढ़ने के लिए उठाया। माँ हर परिस्थिति में, पता नहीं माँ का दिल क्या होता है, हम सब लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। अरे माँ छोटे बच्चे को पालती हुई विधवा हो जाती है, बाकी सब लोग हिम्मत हार जाते हैं,
और वो कैसा भी काम करके अपनी औलाद को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। और मैं सोचता हूँ कि कभी कभी किसी किसी के साथ प्रभु भी कुछ परीक्षा कर देता है, और ऐसे समय में माँ की हिम्मत ही उस बच्चे को पाल करके आपके हमारे और समाज के लिए सबसे बड़ा योग्य व्यक्ति बना करके उभार देती है। भारत का इतिहास अगर जिंदा है आज भी तो माँ के बदौलत है। भगवान राम को भी पैदा किया कौशल्या ने, तो केवल पैदा करने का कारण नहीं है, उसको वास्तव में पुरुषोत्तम राम बनाने का, उसके संस्कार का, और जिस संस्कारों में से राम पढ़ करके बड़ा हुआ। मैं सोचता हूँ कि कृष्ण का जन्म तो आने दिया, पर उसकी माँ यशोदा बन गई, क्योंकि उसने उसको पाल पोष करके बड़ा किया। तो यशोदा को जो प्यार अपने कृष्ण से मिला वो शायद उनकी माता को भी नहीं। तो वास्तव में अगर गुजरी नहीं होती तो गुरु गोविंद सिंह कहाँ से आते, और गुरु जी के मतलब उनका संस्कार नहीं होता तो क्या ये 4 बलिदानी बच्चे गुरु गोविंद सिंह के तैयार किए जा सकते हैं? और जब लास्ट में 2 बच्चों को दीवारों में चुना गया था तो माँ गुजरी उनके साथ, उनको जब ले गए थे तो उसके साथ वो भी गई, दादी थी। लेकिन दादी के संस्कार के कारण से 2 बच्चे भी क्या कमाल कर सकते हैं कि दुनिया का इतिहास अब तक न पहले हुआ न अभी तक हुआ है, आगे तो मैं नहीं कह सकता। ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं मिला होगा कि 11 साल का और 9 साल का बच्चा देश धर्म के लिए इस प्रकार से न्यौछावर हो जाए। ऐसी घटना किसी ने माँ ने पालन करके इस संस्कारों से ऐसे बच्चों को तैयार किया। तो वास्तव में माँ का जो हमारे समाज में अगर जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी तैयार होता, कि हिंदू साम्राज्य बनता। उसने ये कसम खाई थी कि मैं अपने कोख से ऐसा बच्चा पैदा करूंगी जो इस आतताई का मुकाबला करके हिंदुई साम्राज्य की फिर से स्थापना करेगी। किस साधना से उसने उस जीवन को पाला होगा, मैं सोचता हूँ। तो वास्तव में यह जो माँ का करिश्मा है, ये जितने भी महापुरुष पैदा होते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो तो भी हम यह कहते हैं जननी जन्मभूमि से सर्वभावी। माँ और अपनी मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। यहाँ की गुरु नानक देव ने कहा है कि माँ का सम्मान, माँ की कोख वो है जो राजाओं को पैदा करती है, इस संतों को पैदा करती है। इस महान संस्कृति को बचाने वाले लोगों को अगर धरती पर किसी ने अवतरित किया और उनको संस्कारित करके तैयार किया है, हर मजबूत एक तरह से संघर्ष में अगर ये भारत अजय रहा तो इसका बहुत बड़ा कारण हमारी माँ के द्वारा दिए हुए संस्कारों के कारण से। हमने 1000 वर्षों तक संघर्ष करते रहे लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। ये संस्कार कौन देता है? अभी आपने देखा होगा कि जब सेना लड़ती है और सेना जिस प्रकार का अपना दिखाती है, शौर्य दिखाती है, वो भी किसी माँ के द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा ही होगा जो अपना सब कुछ लगा करके देश के तिरंगे की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाता है। तो यह जो देश की संस्कृति है, आपने बहुत अच्छा काम किया कि इन सब माताओं को बुला करके आपने सम्मानित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके आप सब बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि आजकल कई बार हम लोग अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए उसका ख्याल बुढ़ापे में नहीं रखते, और वो जिस स्थिति में पलती है और रहती है उसने तो सब कुछ जुटा दिया, पर आप उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहे। मैं सोचता हूँ एक इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो कि आने वाले जमाने में वापस जब कोई धरती पर आओगे ना तो इसका एक एक पाई का चुकारा करना। और मैं सोचता हूँ जो अपनी माँ को भगवान का स्वरूप मान करके उसकी आज्ञा का, माँ कभी भी कोई गलत दिशा नहीं बताती। अगर गलती भी करते हैं तो वो एक थप्पड़ दे करके भी संभालने का प्रयास है।
माँ की थप्पड़ का दर्द महसूस नहीं होता है, और तीसरे आदमी की थप्पड़ का दर्द महसूस होता है, आक्रोश आता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्यार है, उसके साथ करुणा है, उसके साथ समर्पण है, उसके साथ त्याग है। मैं सोचता हूँ इसके कारण से माँ का जो सम्मान है वो हमेशा रहा है और होता है। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम जिन संस्कारों में पले हैं वहाँ माँ को भगवान का भी बड़ा स्वरूप मानते हैं। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, माँ रूपी भगवान आपके और मेरे बीच में है। जिसने जिन कष्टों के साथ आपको मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज यह महामहिम के पद पे खड़ा हूँ। मेरी माँ तो अनपढ़, गरीबी में पले थे, है ना, गोबर बीन करके भी, छाने थेप करके, लोगों को बेच करके भी हमारी पढ़ाई की व्यवस्था करती थी। उस माँ का कर्ज कौन चुका सकता है? संभव ही नहीं है चुकाना कभी। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आपकी संस्था ने, इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने, ये दोनों काम बहुत अच्छे किए। और जैसा आप बता रहे थे कि आपका हाईएस्ट परसेंटेज 99 पॉइंट समथिंग, मैं सोचता हूँ कि ये उपलब्धि सामान्य नहीं होती। इस परसेंटेज के लिए बनाने के लिए बच्चों के साथ अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। और मैं जिस बारे में कहना चाहता हूँ, आपने जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा वो बेकार है जो संस्कार नहीं दे सकते। शिक्षा अगर जीने का केवल सिखाती है जीना, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे जीवन वो है जो दूसरों के काम आए। जो आदमी अपने लिए काम आता है वो मरे हुए के बराबर। यह जो शिक्षा है ये चीज थी। शिक्षा केवल ज्ञान देकर के ऑफिसर बनाने का काम नहीं करती। शिक्षा उसको मनुष्यता का गुण सिखाती है। और आपने पता नहीं क्या सोच करके, जिन्होंने भी इस ट्रस्ट के लोगों ने जो नाम रखा ना संस्था का, वो भी वास्तव में आपने बहुत सोच करके मानव मंगल, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा और भी काम हो ही नहीं सकता। हमने इंसान बना दिया ना, तो बाकी सब चीजें तो अपने आप आ जाएगी। और आज ये देश जो इतने आगे जो बढ़ रहा है ना, वो भी मानव शक्ति से ही बढ़ रहा है। 2047 में हम दुनिया का नंबर 1 देश बनेंगे। अभी हम चौथी आर्थिक शक्ति बन गए और 27 के जाने तक हम दुनिया की तीसरी शक्ति बन जाएंगे। इस प्रोग्रेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारी आने वाली ये जो पीढ़ी है ये इतनी काबिल और योग्य बन रही है। केवल और केवल इसको अपना जीवन जीने का तरीका सिखाना पड़ेगा। काबिलियत तो इसमें बहुत है और इसकी सोच भी बहुत ऊंची है। जितने टैलेंट आज के बच्चे हैं जो 4वीं 5वीं के, हम उसमें कॉलेज में पढ़ते समय उतना इंटेलिजेंट नहीं, जितना नॉलेज इनका है। और इनको सही दिशा की ओर मोड़ना ये विद्यालय और महाविद्यालय का काम। मैं सोचता हूँ इसीलिए जो माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का सम्मान होता है ना, तो गुरु का सम्मान। आपको अपने बचपन के गुरु का नाम आज भी याद होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हुए लोगों का नाम याद नहीं होगा, लेकिन उस टीचर का नाम जरूर याद होगा जिसने आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा दी और उसने जिस समर्पित भाव से आपको शिक्षा के साथ जीवन जीने का तरीका सिखाया। वो बाकी कॉलेज में तो केवल भाषण दे करके निकल जाते हैं, बहुत मुश्किल है वहां। लेकिन वो जो टीन एज है 17, 18, 19, इसमें जो कुछ डाल सकते हो वो डाला जा सकता उस बच्चे के मन में। और मैं सोचता हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं यार क्या करें, समय ऐसा ही हो गया। कुछ नहीं हुआ समय तो आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। पहले लोगों के जीवन से देखकर सीखने का अवसर मिल जाता था, अब जीवन से देखकर सीखने वाले मॉडल कमजोर हो गए। बच्चे का कोई दोष नहीं, हम बच्चे का दोष निकालते हैं, कोई दोष नहीं है। जैसा देखेगा वैसा बनेगा, जैसा उसके सामने दृश्य उपस्थित होगा। अपने यहाँ तो अभिमन्यु ने समझा दिया कि संस्कार माँ की कोख से शुरू हो जाता है। वो क्या सोचती है, किस तरह की बातें उसके दिमाग में आती है, उससे बच्चे की रेखाएं बनना शुरू हो जाती है। तो वास्तव में ये जो संस्कार है ना,
ये एक अलग चीज है। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी शिक्षा का परसेंटेज बहुत अच्छा है, 100% है, बधाई बहुत बहुत। लेकिन बच्चे को किसी न किसी ऐसे संतों के साथ महीने में एक बार उनको बुला करके बच्चों को मनुष्य का अर्थ क्या है, मनुष्य को करना क्या है, ऐसे अच्छे लोगों के अगर बच्चे उस वातावरण में सुनेंगे तो मैं सोचता हूँ कि अगर छोटी मोटी भी कहीं कमजोरी होगी तो रगड़ लग करके ठीक हो जाएगा। ये तो वातावरण बनाने के लिए ही सब कुछ होता है। तो मैं सोचता हूँ आपने मेरे टाइम के अनुसार एडजस्ट किया। मैं सच में महामहिम नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक, और शिक्षा का मन मेरा अंदर आज भी मौजूद है। मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई देश निर्माण में सबसे बड़ा मजबूत पाया कोई है वो शिक्षक है। अगर वो समर्पित काम करे तो बहुत कुछ कर सकता है। आप सोचते होंगे कि आज के वातावरण में बच्चे याद नहीं रखते, बच्चे याद रखते हैं। जिसने वास्तव में एक अच्छे अध्यापक के रूप में अपना शिक्षण कार्य करते हुए व्यक्तिगत जीवन से भी उसको प्रभावित किया ना, तो आपको इंग्लैंड के किसी एयरपोर्ट में मिल जाएगा ना, दौड़ के आपको देख करके आपकी तरफ भाग के आएगा, और किसी के साथ नहीं जाता। अपने मित्र के साथ भी ऐसा भाग के नहीं जाएगा, अपने रिश्तेदार के साथ भाग के नहीं जाएगा, और अपने गुरु के दूर से देख करके भी वो भाग के जाकर के आपको गुरु का प्रणाम करता है। यही गुरु की सबसे बड़ी दौलत है। पैसे कौड़ी में कोई दौलत थोड़ी गिनी जाती है। पैसे कौड़ी की दौलत तो बड़ी होती है, ध्यान रहने वाली चीज तो यही है। तो मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस पवित्र काम में लगे हुए हैं और इस ट्रस्ट को प्रारंभ करना और उसको इस ऊंचाई तक ले जाने का जो प्रयत्न जिन लोगों ने किया, इस यात्रा में केवल हम ही लोग सहयोगी नहीं, जो पहले भी यहाँ काम कर चुके होंगे, इस विद्यालय को ऊंचाई पर ले जाने पर उन्होंने अपना योगदान दिया होगा, वो सब भी हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, क्योंकि उन सब के प्रयत्न से ही हम इस ऊंचाई तक आए। तो मैं सोचता हूँ उनका मान सम्मान बराबर बना रहे। और विशेष करके आप माताओं को प्रणाम करता हूँ कि आपने जिन कठिन परिस्थितियों में थोड़ा सा वर्णन किया है ना, मैं सोचता हूँ कि आपको इस वर्णन को देख करके लगता है कि अगर वीर पुत्र कोई पैदा होता है तो इसी घर से पैदा, देश के लिए समर्पित बालक नहीं तैयार होता तो इसी घर जो कुछ भी किया जाता है उसी में है। इसलिए मैं सोचता हूँ आपका सम्मान पहले था, आज है, और जब तक मनुष्य धरती पर रहेगा तब तक माँ का सम्मान कायम रहेगा। ये तो चीज ही अलग प्रकार की है। तो मैं आज आपकी सबकी तरफ से जिनको सम्मानित किया उनका बहुत बहुत नम्रतापूर्वक आपके प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मन से हमको भी आशीर्वाद दें, ताकि हम जिस काम को कर रहे हैं वो ईमानदारी समर्पण के साथ एक जन सेवक बन करके जनता के इस काम को कैसे कर सके। ये आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मजबूत काम है। भगवान का आशीर्वाद का काम आता है, मुझे मालूम है भगवान का आशीर्वाद देगा यही नहीं, और वो इंसान को आशीर्वाद देता है तो उसका फल तुरंत देगा। तो मैं सोचता हूँ आप सब लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जो सामने विराजे हुए कई अतिथि हैं, क्योंकि कुछ सीमाएं होती है, 4-5 लोगों को बिठाया जाता है, और बाकी कई मेरे से भी अधिक लोग के सामने बैठे हैं। मैं महामहिम बना दिया गया इसलिए यहाँ बैठ गया, इसका मतलब वो कोई कमजोर नहीं है। उन सबका योगदान से देश बनता है, और उस योगदान में हम सब लोग एक साथ चल करके अगर काम करेंगे, अभी जो नशा मुक्त पंजाब बने, कितनी बड़ी चुनौती सामने आई। मैं जब गाँव में गया तो मैं दर्द भरी आवाज माँ की सुन करके मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा गवर्नर साहब हाथ जोड़ के 5 जिलों में से 3 जिलों में खड़ी होकर कहती है कि आप कुछ करना हो तो करना, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में जो लिखा हम दिन गुजार रहे, और हमारे बच्चे को नशे से बचाओ। वो उसकी पीड़ा नहीं देख सकती है, वो तड़पता है, और माँ ला करके उसको ड्रग देती है। इस सीमा तक गया माँ। और इस कारण से मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे एक तरह से नशा मुक्त के एम्बेसडर कैसे बने, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, स्वयं नशा मुक्त हों, और बाकी अपने आसपास के सारे दोस्तों को भी इस नशे की प्रवृत्ति से दूर हटाने में वो कैसे कामयाब हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से मदद करेगा।
मैं आप सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर यह एक अवसर दिया कि माताओं का सम्मान। मैं सोचता हूँ ऐसा कार्यक्रम, माताओं के ऊपर ऐसे ऐसे गीत हैं जो बोलते बोलते आंखों से पानी झरने लग जाता है। उसके जो जीवन का समर्पण है ना, उसके बारे में एक तरह से आदमी सुनते हुए एक अलग दुनिया में चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Thank you so much, sir, for such inspirational words shared with all of us. अब मैं सभी माओ से गुजारिश करती हूँ कि वो ग्रुप फोटो के लिए आगे आए। मानव मंगल हर साल मदर्स डे मनाता है। हमारा 12th माँ सम्मान समारोह है। वो हमारा पर्पस ये है कि जी हम बच्चों को जो वैल्यूज़ हमें सिखानी है, क्योंकि आई थिंक हम एजुकेशन के फील्ड में है और टीचर्स को बड़ा सम्मान मिलता है और हम भूल जाते हैं कि हमारी फर्स्ट टीचर जो है वो मदर है। इसलिए वो हमने ये एनुअल फीचर बनाया हुआ है, माँ सम्मान समारोह। ये हमारा 12वां है और हमारा फंक्शन की जो कीमत है वो इस बात से है कि 12वां फंक्शन है और 12वां हमारे पास गवर्नर साहब आते हैं। इतना पसंद किया जाता है हमारा ये। हर बार गवर्नर साहब आते हैं। 12 साल से 12 फंक्शन हुए और 12 ही गवर्नर्स आए। ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है। कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा आज? हम 10 मदर्स को हर साल ऑनर करते हैं और फॉर एग्जांपल आज हम एक मदर को कर रहे हैं जिन्होंने उनका बेटा ब्लाइंड है। ब्लाइंड होने के बावजूद वो IAS बने हैं और वो अब डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं। तो ऐसी माओं को अगर हम सम्मानित नहीं करेंगे तो फिर क्या। तो ये सर ट्राई सिटी से है जो मदर्स को आपने सेलेक्ट किया है क्या? हम ऑनलाइन सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं इसमें। मयंक मिश्रा हमारे जो देखते हैं इस चीज़ को, ट्रस्ट है उनकी जो, उसके थ्रू हम ये करते हैं प्रोसेस। कहाँ से आप चुन सकते हो कि पूरे इंडिया से, मोहाली से? इंडिया तो नहीं, अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँचे। आपने कहा है तो हमारे करेगी बार हम इंडिया से चुने ऐसी मदर्स को, लेकिन अभी हम कन्फाइन किया हुआ ट्राई सिटी और पंजाब। थैंक यू सर।